Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we are going to look at CSET paper 2020, only quantitative part. Okay, so let's start without wasting time from the very first question. In the sum, this equation for which digit does the symbol C stands for? So the best way is to put every digit from one by one in this equation. Okay, I can write this. Okay, so let's start from 2. 2, 2, 2, 2, 2. Okay, so 14, 14 plus 52, 66, 88, 109, and here 1 to 2. So 2 is not right. Let's start from 3, 3, 3, 3. Let's start 3 and 16, 69. 69 plus 33 is here 12, 6 or 3, 9, 102. 102 plus 31, 133, and here also 133. 133 is the correct answer. B. The second one is, if you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length you can measure? हमारे पास दो स्टिक्स हैं, एक की लेंथ है 7.5 और दूसरे की है 3.25. So what you have to do here, you are very simple. You will take SCF. So let's first do 7.5. For easier, let's multiply by 100. 750 and 325. First 750. 2, 3, 7, 5. Now you cannot make. Now 3. 1, 2, 5. By 5, 2, 5, 5, 5. So 750 is 2 multiplied by 3, multiplied by 5, multiplied by 5, multiplied by 5. Let's do for 350. 2, 1, 7, 5. 3, 5, 7, 7, 1. So for 350, it is 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 7. So what is SCF? This 2 and this 2 is making sense. 5 multiplied by 5 is a 25. What we have done here, हमने 100 का गुणा किया था, वही यहाँ पे कर देना है. 100 का अब हम भाग कर देंगे. 0.25. This is the answer. So B is the right answer. Let's look at the question third. A simple mathematical operation in each number of sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32. The result in sequence with respect to the prime number. ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होना चाहिए था. Which of the following is the next number in the sequence? वो बोल रहा है ये सीक्वेंस है आपके पास 14, 18, 20, 24, 30, 32. नेक्स्ट डिजिट क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर यहाँ पे कहाँ है? 13 है ना, तो 13 प्लस 1. हियर 17 प्लस 1, 19 प्लस 1, 23 प्लस 1, 29 प्लस 1, 31 प्लस 1. Now 32 is here. 33 is a prime number? No. 34? No. 35? No. 36? No. 37? Yes. So here we can write 37 and here plus 1 is 38. So C is the correct answer. I hope it is very easy for you. This is the simplest question. Let's look at this one. One page is torn from a booklet. Okay, फाड़ दिया page. एक booklet से whose page are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. Sum of the numbers on the remaining page is 195. The torn page contains which of the following number?
अब ये क्या बोल रहा है, एक बुकलेट है, वहां पे ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, आगे 1 और पीछे 2। पेज नंबर 2, 3 विथ 4, 5 और 6, ऐसे ही नंबर लिखे हुए हैं, 7 और 8 आगे पीछे। तो इन सब का सम मिला के 195 है। मतलब ऐसे बहुत सारे पेज होंगे, तो उसमें बताइए बुक में कौन से नंबर का पेज आपने फाड़ा है। तो ऐसे ही रैंडम केस लेते हैं। लेट सपोज 10 ले लेते हैं फर्स्ट। 10। So if you will focus here, 1 plus 1, 2 is 3, and then here 3 plus 4 is 7, 10 of दो पेज में ही आ रहा है। तो फॉर्मूला इज n plus 1, 2. So we can write 10, 11, 2, 5. So 55 is total. ये तो नहीं होने वाला है। So let's put it here 20, 20, 21, 2. Here 10 and page number is 210. So this might be a case because 210 तो हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो पेज फाड़ा हो उसकी वजह से ही तो 195 रह गए। तो यहाँ पे एक माइनस कर लेते, 2110 माइनस 195, टोटल इज 15। टोटल 15 होना चाहिए, वही पेज नहीं फाड़ा होता तो 20 पेज होते। तो 15 का सम कहाँ पे है, यहाँ पे 5 और 6 11, 7 और 8 15, ये क्या, ये 19 हो गया, ये आपका 11 11 22 और 23 हो गया। तो आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। The page number was 7 and 8. This is the right answer. I hope it is clear for you. It is simplest question. These four are simplest one. It is also simple. Let's focus. Let A3BC DE2F be four-digit number where each letter represent a different digit that is greater than 3. A, 3, B, C. The sum of the number is 1592. D, E, 2, F, and the sum is 20915. So what is the difference between value A and D? Okay, इनका डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। The value of these letters are greater than 3. तो 3 से ज्यादा ही होगी, क्या क्या हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज द 9। देख लेते हैं, 4 और 8 ही जाएंगे यहाँ पे, तभी 12 बनेगा, नहीं तो और कोई तो डिजिट से 2 बनने जाए। तो यहाँ रख देते हैं अपन 4 और यहाँ 8, तो ये 12 बना, यहाँ कैरी किया 1, ये हो गया 3। 3 में क्या जोड़े जो 10 बन जाए, 3 में जोड़ते हैं, बी हो गया 7, ठीक है। फिर से कैरी किया यहाँ पे 1, ये 4 हो गया, 4 में क्या जोड़े जो 9 बच जाए, 5। तो हमारा 4 यूज हो गया, 8 यूज हो गया, 7 यूज हो गया, 5 यूज हो गया, बचा क्या, 6 और 9, 6 बचा और 9 बचा है, 6 और 9 और 6 9 और कितना होता है 15। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए की वैल्यू 6 है और डी की ये है, तो डिफरेंस इज 9 माइनस 6 इज 3। तो 3 इज द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, तभी तो आसान बनाया हुआ है। लेट्स सी सिक्स्थ वन। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोइंग बाय टू कंक्लूड। वो बोल रहा है ये दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, these two, all numbers are divisible by 2, 2 and all numbers are divisible by 3। कंक्लूड क्या कर रहा है ये, all numbers are divisible by 6 and all number are divisible by 4। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले, all number divisible by 2 and 3। तो वो 6 से भी डिविजिबल है और वो सारे नंबर 4 से भी डिविजिबल है। ऐसा है क्या, जो 2 से डिविजिबल है वो देख लेते हैं, 12, 18, 15 तो नहीं होगा ना 2 से, इसलिए वो 15 नहीं लिया। वो ऑल्दो 3 से डिविजिबल है बट वो 2 से नहीं है, इसलिए 18 लिया। 24, 30, 36, ये देख लो 6 से है कि नहीं, ये 6 से 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 5 टाइम है, ये 6 टाइम है, और ये सब 2 और 3 से भी थे। बट सेम नंबर को देखिए आप, 12, 18, 24, 30, 36, ये 4 से है क्या, चलो ये तो है 3 टाइम्स, ये है क्या,
नहीं है, ये सब पॉइंट में आएगा। ये है, ठीक है, मान लिया ये 6 टाइम्स है। ये भी नहीं है, ये भी 7 पॉइंट समथिंग है, 7.5। ये है, तो ये ऑल नंबर नहीं हुए ना, ये कुछ नंबर हुए। तो आपका ये जो कंक्लूजन सेकंड है वो गलत हुआ, और कंक्लूजन फर्स्ट इज अ राइट। तो हमारा कौन सा होगा, विच ऑफ द अबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट, कौन सा ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1, 2, और नीदर 1 और 2 और बोथ। तो हमारा ए इज अ राइट आंसर बिकॉज ओनली कंक्लूजन इज अ राइट आंसर। ठीक है, 6 इज राइट आंसर। Let's look at the next one. How many integers are there between 1 and 100? It is saying between. So 2 to 99. Again, if it is saying from, then it is 1 to 100. It is a catch. You need to know. Which have 4 as a digit but are not divisible by 4. ठीक है, क्या कह रहा है, जिसमें 4 आता है बट वो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो 1 से 100 के बीच में आते हैं? तो बस लिख लेते हैं, बिना दिमाग लगाए भी हो जाएगा ये। 14, 24 डिविजिबल है 34, ठीक है 44। अब वो 40 से लेके 49 तक की सीरीज है तो उसे स्किप कर देते हैं। अब 54 हो रहा है क्या, वो भी नहीं होगा। 64 हो रहा है क्या, 64 लगाओ दिमाग फटाफट। 64 टू 4 हो रहा है, उससे आगे बढ़ते हैं। 74 नहीं हो रहा है। 84, 84 तो हो गई 2 और 21 टाइम्स। 94, यस वो भी नहीं हो रहा है। तो ये कितना, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। अब 41 वाली सीरीज देख लेते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये पूरा लिख लिया मैंने क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 40 डिविजिबल है, 41 डिविजिबल नहीं है, 42 भी नहीं है, 43 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 सोचो सोचो नहीं है, 47 नहीं है, 49 नहीं है, 48 डेफिनेटली है 12 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 प्लस 7 कितना होता है, 12। दिस इज द आंसर, सी। Let's start another one. Let X and Y be the volume, M and N be the mass of two metallic cubes, P and Q. Okay, so we have two cube, P and Q. Let me draw here this one, and this is little bit bigger. Why? This is P, this is Q. Each side of Q is 2 times of P. Each side, this, all three sides, 2 times of P. So if, let's suppose, length of one side of P is A, then length of one side of Q is gonna be 2B. Is it simple? And mass of Q is 2 times of P. Mass क्या है? M for P and N for Q. But let me go for volume first. This volume is mentioned. X is for P and Y is for Q. The ratio of volume is X upon Y is equals to A cube, and 2, this is a little bit problem, it should be 2A. Okay, so I can write 2A cube. Why I'm writing 2A cube or A cube? Because volume is, I can write here A into B into C. We know only one side length, so I can write A cube. So here A cube and 8 A cube. This is 1 by 8. So ratio is 1 8 for volume. Now let's talk about question में क्या बोला हुआ है इसमें. The mass of Q is 2 times. So mass, let's suppose mass of P is B and mass of Q is 2B. Is it okay? Because it's 2 times of P. Let U is equals to M upon X and V is equals to N upon Y. This is mass for. So
u is v x1 and v is equals to what was n 2b upon 8. Okay, so u upon v equals to b by 1 and 2b by 8. So b से b गया, 8 by 2, this is 4. So I can write here u upon v is equals to 4. Then u is equals to 4v. This is the right answer. Okay. Let's see another one. The average age of teacher and 3 students is 20 years. Okay. What we have? Teacher and 3 students. So they all are 4 is equals to 20. So if teacher's age is x and student age is y, by 4 by 20, x plus 3y is equals to 80. This is the first equation. If all the 3 students are same age, okay, and difference between age of the teacher and age of the student is 20 years. Difference between age of the teacher. So teacher age was x and student was y, and this is 20. This is second equation. Put it together. माइनस प्लस माइनस, ये इससे कट गया, ये 4y हो गया, ये 60 हो गया, तो y is equals to 60 upon 4, 1 and 5. So y is equals to 5. स्टूडेंट की एज है 15, सारे तीनों स्टूडेंट 15 साल के. देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? तो y को यहां रख दें, x minus 15 is equals to 20, तो x is equals to 35. 35 साल के टीचर हैं आपके, तो C is the right answer. Let's see the next one. The person bought a car and sold it at 3 lakhs. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? वो बोल रहा है 3 लाख में बेचा है बट 20% के नुकसान से, तो 3 लाख हमारा क्या है? 80% है. सिंपल है. एक तो फॉर्मूला है, आप वो एसपी और एलपी लगाएं. एसपी इज इक्वल टू 3 लाख और लॉस इज 20%, और फिर इस फॉर्मूला में रखो एसपी 100 माइनस लॉस. तो ये सब में आपको एग्जामिनेशन में टाइम नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला याद करने. सो व्हाट यू कैन डू, 360 का 80% देखिए, तो 10% कितना होगा इसका? 36,000. इसका 80 कितना हुआ परसेंट? 6 8 जा 48 एंड 4 कैरी 24 एंड बट हमारा 3 लाख में बेचा है. फिर दूसरा देखते हैं और फिर तीसरा देखेंगे, फिर चौथा देखेंगे. ये फटाफट हो जाएगा. अब ये 36,500, फिर इसका 80 में मल्टीप्लाई करो 40. थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, 0 है क्योंकि 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 6 48, 48 और 4 तो फिर 5 कैरी, 8 3 24, 24 और 5 29. ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये आ रहा है 2,92,000. फिर ये 70 में देखते हैं, 37,000 मल्टीप्लाई बाई 80, 8 7 42. ये तो पैसे ही नहीं आ रहे क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, हमें चाहिए 0. अब ये देखते हैं 37,500 में 8 का मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 प्रॉमिसिंग है, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 हो गया, 8 3 24 और 6 3. वाह, यही था. दिस इज द राइट आंसर डी. और यही चीज यहाँ पे रख के देख लो, आपको पता चल जाएगी. सीपी एसपी कितना था? 3 लाख. 30 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 100 में से लॉस परसेंट कितना है? 20, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा. वही डिवाइड कर दो, वही हमने किया है ऑलमोस्ट. तो ये आ जाएगा आपका 337. ये मैंने कैलकुलेशन की नहीं है बट आंसर यही आएगा. अगर आपको करना है तो कर सकते हैं. 8 3 24, 3 6 बचा 60, 8 7 56, ठीक है. फिर से 4 बचा, 8 पंजे 40. देखो यही आया. तो डी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
Let's see this one. How many zeros are there at the end of the following product? Product, what you have to do? You have to multiply. Product is this. आसान है but थोड़ा लेंदी प्रोसेस है. We can make it very quickly. How we can do it? कैसे कर सकते हैं? ये तो सब सिंगल फैक्टर है, इसे छोड़ देते हैं, यहां से फैक्टर करना शुरू करते हैं. 15 का 3, 5, 20 का 2, 10, 25, 5 multiply by 5, 30, 3, 10, 35, 7 multiply by 5, 40, 2 multiply by 2 multiply by 10, 40 तक हो गया ना. 45, 3 multiply by 3 multiply by 9, 50, 5 multiply by 10, 55, 5 multiply by 11, 60, 2 multiply by 3 multiply by 10. तो 10 पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं, फिर उसके बाद और करेंगे क्योंकि जितना 10 होगा उतना तो जीरो होना पक्का है. 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, 10 टू द पावर 6. अभी किसका किसका प्रोडक्ट के एंड में जीरो आ रहा है, मतलब किसके किसका मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ रहा है. 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है. आप देख लें, और किसी का भी मल्टीप्लाई किस में भी करेंगे, हमारे पास और क्या डिजिट है, 3 है और 7 है और 9 भी है. ये 9 नहीं होगा, ये 5 होगा. ये यहाँ पे हमने गलती की है. ठीक है, तो देख लेते हैं फिर 5 कितने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 की पावर 6. 2 देख लेते हैं. 1, 6 नहीं है, 7 होंगे, एक ये भी हमने छोड़ दिया है. 2 की देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर है 7. 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, तो ये 10 की पावर 4 हो गई. और ये आपका अलग बचा है, 5 की पावर 3 बच जाएगा. तो 10 की पावर 6 ये और 10 की पावर 4 ये, आपका 10 की पावर 10 हो गया. 5 की पावर 3 बची है जो, उसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 के साथ कर लो या 7 के साथ कर लो, बस वही बचता है. उसके साथ नहीं होता. यहाँ 15 होता है और यहाँ भी 35 होता है, जीरो नहीं आता किसी के भी एंड में. 10 की पावर 10, ये आंसर है आपका. लेट्स सी दिस वन. लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर where x, y plus z is not a multiple of 3, then x, y, z plus y, z, x plus zxy is not divisible by which one? These are the options. तो इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. x, y, z, इसका मतलब होता है 100x plus 10y plus z. y, z, x, इसका मतलब होता है 100y प्लस, ये मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से z प्लस x. ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कौन से नंबर पे, वहां से, ये बेसिक है, आपने पढ़ा होगा 10th में. z x y, 100z प्लस 10x प्लस y. तो ये हमारा, इसको हम ऐसे लिखें एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, मतलब इन कम एडिशन क्या आएगा, एक्स एक्स जोड़ लेते हैं, एक्स एक्स 111x प्लस 111y प्लस 111 जेड. 111 कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब देखो ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये तो सीधा सीधा डिविजिबल है. इसका फैक्टर कर लेते हैं. इसके फैक्टर क्या आएंगे, 3 इंटू 37. 37 भी डिविजिबल है और 3 भी डिविजिबल है. What option we have left with a 9? So 9 is a correct answer. B is a correct answer, or you can say. Is it okay? Let's look at this question. Let P, Q, R, S be natural number. Okay. P, Q, R, S is a natural number such that P minus 2016 is equals to Q plus 2017 equals to R minus 2018 and
S plus. Okay, so this is the condition. What you can do, which of the following is the largest number in between P, Q, R, S? Let's start by comparing these two only. In this, P is bigger than or Q is bigger. Let's suppose it is only 1. So it is 2018. It should be 2018 plus 2016. How much? 8 plus 6 is 4. Carry 1, 3, 0, 4. So P should be 4034 minus 2016. Then it would be equals to 2018, or if Q is 1. If so, we can say P is obviously bigger than. So in this case only, R is also bigger than this S, because it is a minus, it is a plus. So we need to confirm between P and R. Let me draw here. P minus 2016 equals to R minus 2018. If I'll write this here, P minus R minus 2018 plus 2016. P minus R is equals to minus 2. So if I use minus P plus R is equals to 2, or I can say here R minus P is equals to 2. And if R minus P is positive, so it must be R is bigger than P. So R is the largest number here. C is the answer. Quite simple. But in examination, it will take time because you are more anxious there. So try to do it later, mark it, and if you have practiced enough, then don't need to worry. आप कर सकते हो. And next one. How many 5-digit prime number can be obtained? 5-digit prime number. Obtained by using all the digit 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition of digit. Okay, confusing, but it is simplest one. Let's do by first addition. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. What we can write? 1 or 2, 3, 3 or 3, 6, 6 or 4, 5, 10, 15. It is a prime number? No. Multiply. 2, 3, 6, 6, 4, 24, 24, 5, 120. 120 is a prime number? No. Okay. What else you can do? So prime number is none, 0. A is the answer. Simplest one till now. What is the greatest length of X such that 3, 1 by 2, 8, 3 by 4 meter are integral part of X? Okay. So start. Let it simplify. It is 3 multiplied 2, 6, 7 by 2, and this 27 by 4. If they are asking greatest length of X and these two are integral multiple, so what do you have to do? HCF of numerator and LCM of denominator. So HCF 7 and this should be 35 by 4. Okay, 35, and LCM will be 2 and 4. So HCF will be 7 only, because the factor will be 7 and 7 by 5. 2 and so HCF is 7 and LCM will be 4. So answer will be 1 by 3 by 4. This is the answer. So D is the answer. Let's move to the new one. What is the largest among the following? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो 8th क्लास का क्वेश्चन होना चाहिए,
But before that, you need to know few basics. If 1 by x, then I can write it x minus 1. The same thing with x minus 1, then I can write x. If 1 by x minus 2, then I can write. So it is a basic concept you know very well. Same thing here, 1 by 2 minus 6, then 2 by 6. Same thing with this, 4 by 3, 4 की power 3, and 1 by 3 minus 4, 3 की power 4, and same 4 की power 2. So 2 की power 6 और 4 की power 3 और आपका 3 की power 4 और 4 की power 2 में से कौन सा बड़ा है, तो कर लेते हैं। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 4 चौक 16 चौका 64, 3 त्रिका 9 3 27, 3 81, and this is 16. So 81 is the biggest number here. This is the biggest number. C is the right answer. V is recurring decimal representation 1.272727 is equivalent to. Let's suppose x is equals to 1.272727. Okay. So this is equivalent in between these. इनमें से कुछ होगा, तो इसको आसान करने का ये तरीका है, 10 का 100 का इधर मल्टीप्लाई करो, इधर भी 100 का करो, क्या आ गया 127.2727। 10x इधर है, इसको 126 प्लस 1.272727 लिख सकते हैं, और ये आपका 126 प्लस x है, ये देखिए, तो क्या हुआ ये 99x इज इक्वल्स टू 126 x 126 बाई 99। तो इनमें से कौन सा होगा, ये 11 टाइम्स 9 से, और ये 1 3 6 4, आंसर इज 14 by 11, 49. B is the right answer. Let's see this one. What is the least 4-digit number? Least मतलब छोटा, when divided by 3 4 5 and it is 6 also. Leaves a remainder 2 in each case. Try to correct it. This should be 10 6. So in between 3 4 5 and 6. So LCM of 3 4 5 6, first you need to know 3 3, 4 का है 2 by 2, 5 का 5 और 6 का 2 by 3। तो क्या होगा हमारा 3 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5, 15 दूनी 30 60, 60, okay, and divide by least 4 digit, 4 digit का least number 1000 ही होगा, तो divide by 60 कितना आएगा 60 40 and then 1, this should be on 6 time 360 40 again, okay। तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए और रिमाइंडेड 2 बचना है, तो एक तो यहाँ पे b साइड होगा और +2, तो 1000 में b साइड कर दो, +2 रिमाइंडर है वो भी, तभी तो ये 40 + 20 60 होगा, तो होगा हमारा 1022। दिस इज द आंसर, ओके। कोई कंफ्यूजन है किसी में भी, प्लीज राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू with the specific concept, at least give you link to know better basic concept of the question. Let's see this one. In adult population of city, 40% men and 30% women are married. 40%
men and 30% women. What is the percentage of married adult population? Okay, percentage of adult population. But this should be married, bachelors की नहीं. If no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widows and widowers, तो मतलब सबने एक एक बार शादी की है और बाकी सब बैचलर है, कोई विडो वगैरह सब नहीं है ये, तो ये कंडीशन उसने आसान बनाने के लिए दी है. तो लेट द टोटल नंबर ऑफ men will be x, let's suppose, and women will be 100 minus x. Why 100? Because total population तो 100% होगी ना, ठीक है. 100% population में से x हटा दो तो कितने बचेंगे? वो सारी औरतें ही होंगी. We are not talking about percentage of married, we are talking about the total population. टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है. बट अगर मैरिड मैन की बात होती है तो 40x अपॉन 100 ये परसेंटेज है, और मैरिड वुमेन की बात होती है तो 100 माइनस x ये 30/100. ये x तो टोटल पॉपुलेशन है, ये मैरिड क्या 30% है. ठीक है, समझ में आया. तो इनका कंपैरिजन ले लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें क्या पता है सबने एक बार शादी की है ये कंडीशन. तो 40x अपॉन 100 is 100 minus x is 30 and this 100. इससे ये गया और इस एक से ये गया, तो ये क्या बन जाएगी 4x माइनस 300 माइनस 3x, और ये बन जाएगा 7x is equals to 300. So x is equals to 300 by 7. Is it okay? मैरिड मैन x की वैल्यू आ गई. अब ये इक्वेशन थी यहाँ पे, मैरिड मैन कितने हो गए? मैरिड मैन इज 40, x की वैल्यू क्या है 300 डिवाइड बाई 7 एंड दिस इज 100. तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन 300 बाई 40 700. ठीक है, ये इसका 3 टाइम्स गॉन 120/7 आ गया. ओके, और चाहे तो इसमें रख दो ये इक्वेशन x, चाहे तो आपको ये भी पता है मैरिड मैन इक्वल्स टू मैरिड वुमेन, क्योंकि सबने एक ही बार शादी की. तो 120/7 120/7 240/7. This is the percentage of women and men adult population of married. This ऊपर साइड देखिए. तो बस इसको फैक्टर करना है. कितना हुआ 7 या 21 बचा 3 30 7 चौक 28 28 2 बचा, नीचे ये 7 बचा, यही परसेंटेज है और ये आपका आंसर. C is the right answer. Let's see this one. A sum of 2500 is distributed among x, y and z in the ratio of. Okay, तो 2500 रुपए अपन ने x, y and z में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. रेशियो क्या है 1/2 3/4 5/6. ओके, तो आपको पता है क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है. कितना हुआ 2 दूनी 4 3 12 and one share let's suppose will be x, then 6x 9x 10x, and this 6x 9x plus 10x is equals to 2500. then 25x 6 और 9 15 और 10 25 2500 x is equals to 100. बस करना क्या है, सब में रख देते हैं x की वैल्यू. x is having 6x, then 100 multiplied by 6, इसको भाई सबको 600 मिल रहा है. and y is having 9x, then 100 into 9 900 and z is equals to 10x is equals to ये हो गए आपके 1000. तो क्या क्या शेयर है हमारा 600 है 900 है और 1000 है. तो क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर. तो मैक्सिमम वाज 100,000 एंड दिस इज 600. बस ये लिखने की भी जरूरत नहीं है. दिस इज
400 is the answer. कहाँ है? C. Let's see this one. For what value some digits in the number 10 by n plus 1 is 2. Let me write it here. Plus 1 is equals to 2. This is a little bit complicated. What should be the answer? It is not, I'm not sure, because if x की power 0 तो 1 ही होता है, so 10 की power 0 is also 1. Okay, so A should be the answer, because 10 की power 0 plus 1, 1 plus 1 is equal to 2. But it is saying some digits. Let's suppose ये यहाँ पे 1 हो गया, plus 1, this is 10 plus 1. ये देखो, ये some digits, it is 2, ये फिर से 2, 3, ऐसे ही चलता रहेगा, 1 तो आना ही है. We can say this is right answer will be for any whole number of n, for any positive integers, and only for any real number n. I think for any whole number of n. Okay, so B is the right answer. And check with the UPSC as well. जब भी इनकी आंसर कीज आएंगी, आप एक बार वहां पे भी चेक कीजिएगा. Let's see this one. In a class there are 3 groups, A, B and C. Okay, 3 groups, A, B and C. If one student from group A, okay, one student from A and 2 students from B shifted to the C, shift हो गए C में, then what happens to the average weight of the student of the class? Are you kidding me? This is the answer. Average weight of the, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, average weight of the student of the class. आसान है. पहले मान लीजिए 10 थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10 थे, और यहाँ पे भी 10 थे. इसमें से एक गया, ये 9 रह गए, इसमें से 2 गए, तो यहाँ 8 रह गए, और वो कहाँ शिफ्ट हो गए? 13. यहाँ पे ये, यहाँ पे 2 की जगह 3 की जगह 2 स्टूडेंट आए हैं, तो 3 टोटल हुए हैं शिफ्ट, तो यहाँ 13 आ गया. तो पहले भी कितना था? 30 हो रहा था ये, और अभी भी 30 ही होगा. 30 का एवरेज पहले भी 10 आ रहा था, और अभी भी 10 ही आएगा. तो डिक्रीज नो, इंक्रीज नो, इट रिमेन्स द सेम. सी इज द राइट आंसर. आई थिंक अब तक का सबसे इजीएस्ट था ये. Let's see this one. How many different sums can be formed with the denominations of 50 rupees, 100, 200, 500 and 2000, taking at least 3 denominations at a time? तो है कितने ये? 1, 2, 3, 4, 5. तो out of 5 you can take minimum 3 and maximum can be 4 or 5 or 3. तो minimum 3 तो लेनी है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं. बस इसे सॉल्व करना है. 5 फैक्टोरियल, 5 minus 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल, 5 minus 4, 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 minus 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाई 5, 5 फैक्टोरियल. तो ये 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल आएगा, और 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये 3 फैक्टोरियल. ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हमने एज इट इज उतार लिया, क्योंकि ये इससे कट जाएगा. आसान कैलकुलेशन के लिए हो रहा है ये सब. 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल आया, और ये आपका 4 फैक्टोरियल. ये 4 से 4 चला गया, 5 फैक्टोरियल, और ये आपका 0 फैक्टोरियल. देखिए उस इस 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो यहाँ कितना आया? 10. ये 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 5, और ये 0 का 1 आ गया. तो 15 प्लस 1 is 16. 16 is the right answer. तो A is the right answer. ये है इसका. आसान है, कुछ है नहीं, बट थोड़ा यहाँ पे कई लोग मिस्टेक कर सकते हैं जल्दी में, कि उसका 15 मार्क कर दें आंसर.
ठीक है, बट आंसर विल बी 16. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51, 27, 35, 62, 75 इज डिवाइडेड बाय 100? बहुत ही आसान है, इसमें एक ट्रिक है. यू नीड टू रिमेंबर, अगर ऐसा एक आ जाता है तो ओनली मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5. तो कितना हुआ? 7 और ये 35. 2 5 is 70 and 5 is 350 and 350 divided by 100, remainder will be 50. So this is your right answer. Okay, कोई कंफ्यूज? ये ट्रिक है, आप एग्जाम में ये सब भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. लेट्स सी दिस वन. ए बॉटल कंटेन 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए. बना ही लेते हैं. दिस इज बॉटल ए. ओके, 4 liter if liquid A is taken out of it, replaced by the same quantity of liquid B. ठीक है, यहाँ पे एक और बॉटल है, मतलब जिसमें B है. क्या किया आपने? इसमें से 4 बाहर निकाला. क्या किया? 4 ऐड कर दिया, 4B. ठीक है, अगेन 4 liter of mixture is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. तो फिर से निकाला और फिर से 4B ऐड कर दिया. What is the ratio quantity of liquid A to that liquid B in the final mixture? अब ये बोल रहा है फाइनल मिक्सचर में कितना रहेगा जब ये निकालने के बाद और ये ऐड करने के बाद. ये इनिशियल नहीं पूछ रहा है. तो आपको इनिशियल निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है. मान लीजिए ये x है, ये y है, तो x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स. ये कितने टाइम्स क्या है? n क्या है? 2 टाइम्स. x कितना था? 20 लीटर. ठीक है, 20 माइनस 4 डिवाइड बाई 20, इसका स्क्वायर. ये क्या है? 16 का और 20 का स्क्वायर. ये आपका 4, ये आपका 5. 4 अपॉन 5 का स्क्वायर. द 4 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 6 और 25. ये आपका इनिशियल है. अब आपको बाद में निकालना है क्योंकि आपने इसमें से निकाल दिया है इतना. तो कितना है? 16, 25 माइनस 16, तो 16 डिवाइड बाई 9. तो आपका आंसर आएगा 16 रेशो 9 इज योर करेक्ट आंसर. द सी इज अ करेक्ट आंसर. Let's see this one. The average score of batsmen after 15th inning was 46.4. मतलब 50 इनिंग में इसका एवरेज है 46.4 एवरेज. And after 60 inning, the average score was increased by 2.6. What was his average score in the last 10 innings? बोल रहा है 50 इनिंग्स तक तो ये एवरेज चल रहा था. जब 60 इनिंग हुई तो टोटल कितना आया? 46.4 प्लस इतना आपका इंक्रीज हो गया, तो मतलब 49 आपका. जब वो 60वां मैच खेल रहा था तो 49 उसका एवरेज था. ये पक्का रोहित शर्मा लग रहा है क्योंकि पहले नॉर्मल खेलता था, अभी अच्छा खेल रहा है. तो 60 इनिंग पे 49 है, तो टोटल रन कितने बनाए इसने? 49. कितने हो गए ये? 2940. और पहले कितने बनाए थे 50th इनिंग तक 46.4 के हिसाब से? ये आएगा 2320. तो बस आपको यही करना है, 2940 माइनस 2320 26. तो लास्ट 10 मैच में उसने 620 रन बनाए थे. तो एवरेज क्या हुआ लास्ट 10 मैच का? 620 डिवाइड बाई 10. ये आपका कितना आ गया? 62 इसका एवरेज आ गया. और यही आपका आंसर है. सी इज योर राइट आंसर. फिर से समझना, एक बार बता देते हैं. 50 इनिंग जब वो खेला इतना एवरेज था. जब वो 60 मैच कंप्लीट किए तो एवरेज इतना हो गया क्योंकि इतना 2.6 उसका एवरेज बढ़ गया. तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 49 के हिसाब से उसने कितने रन बनाए होंगे? 2940. और 50 के एवरेज से कितने बनाए थे? 2320. बस इसमें से इसको माइनस करना है तो लास्ट की 10 इनिंग का स्कोर आपको पता चल जाएगा. वो 620 है, ये आपने निकाल दिया. और उन 10 इनिंग का 620 है तो एवरेज आपका 62 आ जाएगा. दैट्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन.
Let's see this one. A car travels from place X to place Y. ये X है to Y at an average speed of v किलोमीटर पर आवर. ठीक है. And Y to X at average speed of 2v किलोमीटर पर आवर. गई v से थी, वापस आई है 2v से. Again from X to Y at an average speed of 3v किलोमीटर पर आवर. 3v किलोमीटर से वापस गई. एक्सपीरियंस पूरा लग रहा है इसे. Again from X to Y to X at an average speed of 4 किलोमीटर पर आवर. He is learning so fast. ये है आपका. v से गए, वापस 2v से आए, फिर 3v से गए, वापस 4v से आए. मतलब 4 चक्कर लगे हैं. What is the average speed of car for the entire journey? बहुत ही आसान है, एलसीएम निकाल दो. किसका निकालेंगे? ये v हटा दो. 1 2 3 4 2 डायरेक्ट भी निकालते तो आ जाता, बट फिर बाकी लोगों के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 3 इक्वल्स टू 12. 12 आ गया. तो 12 को क्या करो? 12 1 से हुआ, 12 आया. 12 डिवाइड बाई 2 6. 12 डिवाइड बाई 3 is 4. 12 डिवाइड बाई 4 is 3. इनको ऐड कर दो. 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25. कितना है? 12 डिवाइड बाई 25 और मल्टीप्लाई कितना होगा? कितने चक्कर है? 4. तो बस निकाल लो आप. ये आ गया 48 डिवाइड बाई 25. तो आप देखोगे ये कुछ 2 से कम आएगा, मतलब 1.9 मान लो इसे कुछ, क्योंकि 50 नहीं है ना, तो 1.9. अब 1.9 में कहा है एवरेज स्पीड इन स्टेटमेंट में? आप देख लो, इज लेस देन v किलोमीटर. नहीं यार, एक से तो ज्यादा ही है. लाइज बिटवीन 2v एंड 3v किलोमीटर. नहीं, ये 1 से 2 के बीच में है, तो इट्स लाइज बिटवीन v टू 2v किलोमीटर पर आवर. तो b इज द राइट आंसर. फिर भी सेफ्टी पर्पज के लिए d देख लेते हैं. 3v एंड 4v किलोमीटर पर आवर, ये भी गलत है. तो b इज द राइट आंसर. लेट्स सी दिस. Consider the following statement. Minimum number of points of intersection of a square and a circle is 2. Okay. And the maximum number of points of intersection of a square and a circle is 8. क्या बोल रहा है ये? एक ये है स्क्वायर और हम एक सर्कल बनाएंगे ऐसा, तो कितनी जगह इंटरसेक्ट होगा? मैक्सिमम. मैक्सिमम की बात करते हैं तो एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन इज 8. ये तो आपका स्टेटमेंट सही है. तो इसने पूछा क्या? करेक्ट. अब एक मिनिमम नंबर वाला भी देख लेते हैं. द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज 2. तो एक छोटा स्क्वायर यहाँ बना लेते हैं और एक मिनिमम इंटरसेक्शन ये होगा. आपको क्या लगता है? या फिर ये हो? अब इसका करेक्ट आंसर आपको यूपीएससी ही दे पाएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये मिनिमम 2 होना चाहिए, बट बहुत सारे कोचिंग्स बता रहे कि ये एक भी हो सकता है. बट ये इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? ठीक है ना. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, बट बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स इसको ओनली बी भी बता रहे हैं. तो वेट करते हैं आंसर्स का फ्रॉम यूपीएससी, फिर देखते हैं. बट मुझे लगता है मिनिमम 2 तो होंगे. ये एक ऐसे करके कोई इंटरसेक्शन हो नहीं सकता. बाकी देखते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं या फिर बाकी कोचिंग सेंटर्स. तो अगर आपने सी भी अटेम्प्ट किया है तो दिस लुक्स गुड. लेट्स सी दिस वन. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर such that the difference of whose square is 63. कह रहा है कितने पेयर ऐसे होंगे नेचुरल नंबर के जिनके डिफरेंस का स्क्वायर 63 होगा. मतलब दो नेचुरल नंबर है, मान लीजिए एक x और एक y, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 63 होगा. तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 63. और 63 के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं मल्टीप्लीकेशन में? देख लेते हैं हम. 63 के बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 7,
63 का दूसरा बनेगा 21 मल्टीप्लाई बाई 3। 63 का दूसरा बनेगा 63 मल्टीप्लाई बाई 1। तीन कॉम्बिनेशन बने। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं कुछ बात बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे 8 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 1, ठीक है, ये आपका 63 होगा। तो देख लेते हैं 8 का स्क्वायर कितना है, ये 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 64 माइनस 1 तो 63, तो एक तो बन गया हमारा। ये दूसरे का देखते हैं, 12 प्लस 9 और 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 63। 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये 63 होना चाहिए। कितना होता है ये 144 माइनस 81, तो 44 प्लस 19 कितना हुआ, 44 प्लस 19 आपका ये 3, ये 63, ये 63 हुआ। ये भी आपका एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब एक यहाँ पे भी कर लेते हैं 63 का और 1, तो ये बनेगा 32 प्लस 31, 32 माइनस 31, तो 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर कितना बना 1024 माइनस 961 कितना बना 63 बना। कैसे, ये 24 प्लस 39 देख लो आप, 24 प्लस 39, 39 कहाँ से आया, ये 100 में से 61 घटाया, तो ये 3, ये 5 और एक 6, तो तीन कॉम्बिनेशन हमारे बन गए। तो ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ 3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ हमारे क्वांटिटेटिव के खत्म होते हैं। हम रीजनिंग का नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, आप आपको अच्छा लगेगा। सो टिल नाउ, बाय बाय, विल सी यू इनटू द नेक्स्ट लेक्चर।